Good morning. Am I audible? Hello. Good morning. Good morning, ma'am. Hello. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. I've sent you all the notes well in advance. You know that, no? I've sent notes related to scansion as well. Yes, ma'am. Hmm. So, have you understood stressed and unstressed syllable marking the foot division of line into foot and the meter? Yes, ma'am. Hmm. Have you practiced at home something related to that? So till now we have come to know what is, okay, because only 6 students are there. Till then we practice. Don't copy from your notebook. Just tell me what is the combination of the various foot which I have done with you. What is iambic foot? Unstressed, stress. Yes. So iambic foot is unstressed followed by, Stress. okay. Unstressed followed by stressed. Correct? What is trochee? Stress, unstress. Stressed followed by unstressed. Correct? What is anapestic? Unstressed, unstressed, stress. Hmm. So two unstressed followed by Stress. stressed. What is dactylic? Stress followed by two unstressed. Followed by two unstressed. Clear? What is pyrrhic or spondylic? Pyrrhic is, I think, um, two unstressed. Hmm. Spondylic is two stressed and pyrrhic is two unstressed. Correct? Yes, ma'am.
and Pirhik is 2 unstressed. So this was revision of your foot, correct? Yes, ma'am. Now meter. If there is one foot in a line, it's known as monometer, correct? Yes, ma'am. If it is 2 foot, it's Oh, diameter. yes. Clear? Yes, ma'am. It if it's 3 foot, it's trimeter. Three feet, correct? 4 feet, Tetrameter. yes. And if it's 5 feet, it's pentameter. What happened? So it's pentameter. If it's pentameter, if it's 5 feet. Now for meter you can use both of the spelling, but better it's metre because that is British spelling. Meter is American spelling. Okay. So otherwise you can use any because every writer has used differently. Ma'am, Yes. hello. Yes. Ma'am, you were not able to hear me. Ma'am, I was just asking that when there is a leak, means ITY. So, ma'am, it is like it is not a syllable. So that thing I've not understood. I haven't come to that point. Now I was revising what is foot and what is meter. Okay. Yes, yes, ma'am. Have you noted down this much? Yes, Should I ma'am. erase it? Yes. Yes, ma'am. Now, when you are marking stress, you are not supposed to mark stress in single words as far as your paper pattern is concerned. Okay, you will be given lines or stanza because now the question paper will be in MCQ format, so I can't give you stanza. Okay, so I will be giving you lines. Okay, instead of stanza. So in single line you have to mark stress. Somebody asked me yesterday how to mark stress, which foot it will be in words like relation and all. First of all, relation or tomato, whatever it is, you are not going to mark the stress in single words, and for that you have to find the foot. Okay, you have to mark it in a line. Is it clear? Because I have done with you main 6 foot only, which are prescribed in your syllabus. There are many more foot, amphibrach and this and that, catalytic and all.
which you can't understand. You will get confused. So I haven't given you all those. Okay. So please stick to these six only. I can tell you many more things under scansion, but then you will get confused. You want me to tell more? I can tell you more. No, ma'am. So I haven't told you many things because I don't want to confuse you. Thank you, Okay. ma'am. So I have just put only those things which are very much necessary for you. Only those things. Is it clear? Yes, ma'am. Which are part of your syllabus. According to your syllabus, you must know all these things which I have told you. There is so much in scansion. There are three books I have referred for scansion. If you want, I can give you more, but then you will only get confused. So I haven't given you. I don't want to confuse you as such. Okay. So when you talk about relation, relation has three syllables, no doubt. Similarly, tomato has three syllables, which are not the combination which I have given you under anapest or dactyl. Correct? So please Yes, don't ma'am. think about those, because you are not supposed to mark stress in single word and then tell the foot. We will be doing it in lines. Okay. So when you mark relation, relation first foot will be unstressed, second will be stressed, and then another will be again unstressed. So this is a different kind of foot. If you want, I can tell you 3 4 more foot, but then you will only get confused. Ma'am, it will be very confusing now in हाँ, last. now only when you do in exam you will come to know 6 foot को याद रखना ही मुश्किल रहेगा. I know that. इसीलिए मैंने और एक्स्ट्रा नहीं बताया है. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, मुझे तो पता नहीं है. नहीं नहीं मैम. हाँ, तो you are to do it in lines. Okay, we are supposed to do in lines, not in single words. So I am not going for that. Is it clear? Whoever has asked me, sending the personal WhatsApp message to that student, is it clear? That student is there in the class or not, I don't know. Yes, Because it's the clear. person hasn't sent me the name and I don't know who is who. So, okay, now scansion we have done. Now, first, never, 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 never. Now, in this, ne will be unstressed and ver will be unstressed. Why? Because when we talk about never, never, if we transcribe never, suppose if we transcribe never, never will be transcribed and then the smallest sound will come. Okay, smallest sound you know na, opposite of this. Let me see if in under insert that symbol is there. So that a sound which is there in ago. Okay, so never will be stressed on nay. Okay, and it will be unstressed on wa. Correct. So never has trochaic foot. Okay. So if never, 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 this is line of poem where the poet has used never 5 times. So this is trochee foot. Okay. If I do it, its division, it's never, never, never 5 times. Correct. So it's trochaic foot 5 times.
So what is the line? It will become trochaic pentameter. Clear? Is it clear to you? Yes, ma'am. So, ma'am, trochaic and trochaic pentameter is different. Huh? Trochaic and trochaic pentameter is different. I didn't get what you are saying. Ma'am, trochaic and trochaic pentameter. अरे अभी तो- तो पेंटामीटर वगैरह डिस्कस किया है ना. हाँ भी किया है, बट अभी तो फिर आपने ये डाल दिया तो but you are asking me, I didn't get your point. When in a line there are 5 foot, it is pentameter line. This line has 5 foot and which is trochee, so it is trochaic pentameter. अभी तुझे क्या समझ नहीं आया? मुझे नहीं समझ आ रहा है. मतलब 5 टाइम्स नेवर नेवर लिखा, इसलिए वो उसको मतलब पेंटामीटर आपने बना दिया. मैंने नहीं बनाया है. एज पर अरे रूल इट इज देयर. नहीं, मतलब रूल ने बना. इससे पहले मैंने ये इन ऑल माई वॉन्डरिंग्स राउंड दिस वर्ल्ड ऑफ केयर, यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5. तो ये लाइन भी मैंने डिस्कस की थी ना लास्ट टाइम. इट्स हाँ मैम. आयम्बिक पेंटामीटर. तो तुझे अभी क्या समझ नहीं आया? मेरे को ये पूछना था तेरे से. मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो जो जैसे स्पेसिफिक है, आयम्बिक है, ट्रॉकिक है, तो उसके आगे पेंटामीटर इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि वो मतलब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना ये सेंटेंस कितने कितने दूर, मतलब कितने कितने फीट पे, मतलब ये कैलकुलेट करेंगे ना, ये पूछ रही हूँ मैं. तो इसमें पूछना क्या है? वही तो मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने तेरे को बताया है कि एक लाइन में अगर 4 फुट होंगे तो वो टेट्रामीटर होएगी, 2 फुट होंगे तो वो डायमीटर होगी. बताया ना ये मैंने. हाँ. फिर और ना आयम्बिक के लिए मैम सेम है 5, तो उसके लिए क्या होगा? क्या? आयम्बिक में जब आपने अभी सेंटेंस कराया था ना गए टाइम पे, तो हाँ, वो आप बोल रहे हो ना, ये देखो, इन ऑल माई, तो देयर इज अ 5, देयर इज अ 5, हाँ, तो तो आयम्बिक पेंटामीटर ना. आयम्बिक ही बोलेंगे, बट 5 है ना, इसलिए पूछी. हाँ, तो क्या? ड्रॉप ड्रॉप स्लो टेयर्स. अभी इसमें कितना है? ड्रॉप ड्रॉप स्लो टेयर्स. तो इसमें 2 है. तो ये स्पॉन्डिक डायमीटर हो गया. ठीक है. 2 फुट है ना स्पॉन्डी के. स्पॉन्डिक डायमीटर हो गया ये. ठीक है. फिर पिरहिक. पिरहिक इन ग्लोरियस ऑन द प्लेन. अभी इन ग्लोरियस ऑन द प्लेन कितना हुआ इसमें? इन ग्लो में 1 फुट हुआ. ठीक है. रियस में 1 फुट हुआ. ठीक है. ऑन द प्लेन में, ऑन द प्लेन अगर इसको हम डायमीटर एनापेस्ट लेते हैं तो टोटल कितने फुट हुए? 3. ठीक है. बट ये इसने खाली पिरहिक का एग्जाम्पल देने के लिए समझाया है. तो ये लाइन में पिरहिक मेजॉरिटी नहीं है. नहीं है ना? नहीं. हाँ, अगर पिरहिक मेजॉरिटी होगा तभी हम लिखेंगे पिरहिक डायमीटर ट्राइमीटर एंड ऑल. इज इट क्लियर? अभी लेट अस कम टू द एनापेस्ट. नहीं From समझ. the एक shore मिनट. come the notes to their mill where it floats. Now from is preposition, the is article, shore is one syllable only. इसलिए from the shore को अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड हो गया. ठीक है. कम द नोट्स. कम will be stressed, the will be unstressed, notes will be stressed. Similarly, to their mill where it floats. To will be preposition, so unstressed. There is pronoun, so unstressed. Mill is stressed. Where is unstressed? It is unstressed. Floats is stressed. So, मैम एक मिनट. हाँ बोल. मैम जो मतलब इसका ना मैम नहीं समझा मुझे. तो ये एनापेस्ट के एग्जाम्पल हैं. खाली ये लाइन एनापेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं. तो यहाँ पर
अगर ये सेकेंड लाइन देखते हैं हम, दिस सेकेंड लाइन इफ वी सी, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एनापेस्ट डायमीटर, ठीक है ना, क्योंकि एनापेस्ट के कितने फुट है, अगर हम इस लाइन को डिवाइड करते हैं तो 2 फुट है, तो इट इज एनापेस्टिक diameter. Is it clear? आया समझ आपको? Yes, ma'am. सिमिलरली नेक्स्ट में हम देखेंगे कोल्ड इन ह्यूमैनिटी, बर्निंग इन सैनिटी. कोल्ड इज स्ट्रेस्ड, इन इज अनस्ट्रेस्ड, ह्यू इज अनस्ट्रेस्ड, मैं इज स्ट्रेस्ड, नीति विल बी अनस्ट्रेस्ड. नाउ कम्स टू योर प्रगति, तू पूछ रही थी ना ITY, अभी ये देख इस एग्जाम्पल आ गया. व्हाट इज इफ सपोज यू टेक द वर्ड सिटी, सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू अ बिग वर्ड, फर्स्ट अंडरस्टैंड सिटी. अभी सिटी में कितने सिलेबल हैं? 2. करेक्ट. इसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो दिस विल बी ट्रांसक्रिप्शन. ओके, क्लियर? हाँ. तो 2 सिलेबल हो गए, C and T, करेक्ट. नाउ विच विल बी स्ट्रेस, बिकॉज ITY जिसका पार्ट रहेगा, अभी यहाँ पे सिटी में ITY सफिक्स नहीं है, ठीक है. सिटी में 2 सिलेबल है, विच विल बी स्ट्रेस, C विल बी स्ट्रेस्ड. क्लियर? अंडरस्टूड? हाँ मैम. और जब हम कोई बड़ा वर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक रूट वर्ड है, करेक्ट? हाँ मैम. इलेक्ट्रिक इज रूट वर्ड, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रिक ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ट्रिक, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक हो गया मेन वर्ड. अभी इलेक्ट्रिसिटी जब हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में ITY जो है वो सफिक्स है, करेक्ट. हाँ मैम. इलेक्ट्रिसिटी में E एक सिलेबल हो गया, दूसरा सिलेबल हो गया लेक, तीसरा हो गया ट्री, चौथा हो गया सी, और पांचवा हो गया टी. इतने सिलेबल्स है. कितने हैं टोटल? 5 syllable. करेक्ट, 5 सिलेबल्स है. अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था या रूल्स बताए थे, ITY जो है वो सिटी का पार्ट हो गया, करेक्ट. हाँ. और मैंने बोला कि सफिक्स जो है उसको स्ट्रेस नहीं करते हैं, तो नेचुरली ITY तक जितना है वो ये अनस्ट्रेस रहेगा, ठीक है. C will be unstressed, T will be unstressed because ITY is part of city, correct? So both these syllable will be unstressed. और उससे पहले वाला syllable tree जो है वो stressed होगा. Is it clear? Yes. अभी इलेक्ट्रिक में IC जिसका पार्ट है वो स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है. तो क्या स्ट्रेस होगा? लेक. इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक, इसमें 3 सिलेबल है, इलेक्ट्रिक, तो लेक विल बी स्ट्रेस्ड, ठीक है. ये स्ट्रेस होगा. आया समझ? Yes. इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी में क्या स्ट्रेस्ड होगा? ट्री. इज इट क्लियर? Yes मैम. तेरा क्वेरी सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ हो गया. तो अभी जो डेक्टिल का एग्जाम्पल में दे रही थी, कोल्ड ह्यूमैनिटी.
कोल्ड इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। तो इन ह्यूमैनिटी में कितने सिलेबल है, यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। ओके, सो इन ह्यूमैनिटी में इन फिर फाइव ह्यूमैन, बोले। 5 कैसे होगा, 3 होएगा। क्या कर रही है प्रगति? 3 नहीं 4 होगा, टीवाई लास्ट कर देंगे ना। तुम मेरा मत देखो, तुम अपना देखो। Cold will be stressed because it's, what is it? Which part of speech it is? It's adjective. Correct. So cold will be stressed. In humanity में root word क्या है? Human. Human. Correct. Yes. In is In prefix is a prefix. Yes. and it is suffix. Perfect. So in will be not stressed and humanity में it जो है नीटी का पार्ट है, तो नी एंड टी बोथ विल बी अनस्ट्रेस्ड। करेक्ट। सो Yes. नीटी से पहले जो सिलेबल है मैं, वो स्ट्रेस्ड होगा। इन ह्यू बोथ विल बी अनस्ट्रेस्ड। तो टोटल इसमें कितने सिलेबल हो गए? 6। ठीक है। एंड इन ह्यू यहाँ पे फुट डिवीजन होगा, नहीं यहाँ पे ही होगा ना, हाँ। और ये टोटल 2 डेक्टिल होगा इसमें। ठीक है, आया समझ? 2 डेक्टिल हो गए कोल्ड इन ह्यूमैनिटी में, है ना। 2 डेक्टिल हुए या नहीं हुए? हाँ हुए। ठीक है, तो ये डेक्टिल डायमीटर हो गई। कैसी लाइन हो गई? डेक्टिलिक डायमीटर। क्लियर? मैम मतलब आपका कि इसको ऐसा करने का, इन ह्यूमैनिटी को तो इनको नहीं सेपरेट किया आपने। अरे हम फुट डिवीजन कर रहे हैं। डेक्टिल का क्या है? एक स्ट्रेस फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड, ये है ना डेक्टिल का कॉम्बिनेशन। ठीक है। बर्निंग इनसैनिटी, बर्निंग में बर्न स्ट्रेस्ड है, आईएनजी अनस्ट्रेस्ड है। फिर इनसैनिटी में सेन जो है वो रूट वर्ड है, तो इन प्रीफिक्स है, अनस्ट्रेस्ड है। सेन में से विल बी स्ट्रेस्ड, सो नीटी बोथ विल बी अनस्ट्रेस्ड। तो बर्निंग इनसैनिटी में भी 2 वो हुए ना, Yes, यहाँ पे ma'am. 2 डेक्टिल हुए। Yes, ma'am. करेक्ट। Yes, ma'am. तो 2 डेक्टिल हुए, तो ये डेक्टिलिक डायमीटर हो गई लाइन। ठीक है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या हुई? डेक्टिलिक Diameter. डायमीटर। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. इतना क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. Clear हो गया। हाँ, तो ये आपको समझ आ रहा है ना, जो भी मैंने अभी समझाया इतना? Yes, ma'am. Ma'am, practice के लिए can you like give us sentence single? हाँ, Like, दे दूंगी। yes, ma'am. कोई भी Because पोयम लेके करोगे तो कर सकते हो ना, तुम्हारे सिलेबस में इतनी पोयम्स है ना ऑलरेडी। no, ma'am. Like if you will give, then maybe in like some next lecture we can you can like discuss with us, right? हाँ, तो वो मैं डिस्कस करूंगी, चिंता मत करो। अभी ये शुरुआत है, अभी पूरा स्कैंशन कंप्लीट नहीं हुआ है, समझे? Yes, ma'am. अभी स्कैंशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, Yes, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये खाली मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, yes, ma'am. अभी स्कैंशन की शुरुआत है, स्कैंशन खत्म नहीं हुआ। स्टैंजा में आएगा तो पता चलेगा क्या क्या करना है। ओके, तो दिस इज व्हाट। इतना समझ आया एक लाइन में कैसे हमें फाइंड आउट करना है फुट एंड मीटर? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर लाइंस आर नाउ। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राइमीटर, दिस दैट। ठीक है, फिर Yeah. कपलेट, स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स इज नोन एज कपलेट।
stanza of 3 lines is known as tercet, triplet, 4 lines quatrains और quartet. ठीक है, फिर 5 लाइन्स क्विंटेन और क्विंटेट, 6 लाइन्स सेक्सटेन एंड सेक्सटेट, 7 लाइन्स सेप्टेट, 8 लाइन्स ऑक्टेट, 9 लाइन्स नॉनेट. ठीक है, ये तो हो मैम गया. यस, टोटल 9 लाइंस तक ही है ना? हाँ, मोस्टली हम लोग ज्यादा बड़ा मैम बड़ा ये कैसे करेंगे, अब ये नहीं समझा. क्या नहीं समझ. मैम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? आई वांटेड टू टेक नोट इट डाउन अगेन. अरे मैंने गूगल क्लासरूम में भेजा है तुम्हें ये. ओके 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 मैम, थैंक यू मैम. मैंने सब टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स भेज दिए. हाँ, पेपर 5 एंड पेपर 8 मैम के. मैम मेमोरीज ऑफ WH इसका नहीं है क्या नहीं है? नोट. चेक करना पहले गूगल क्लासरूम. वो मैंने पहले ही भेज दिया था जब मैंने पोएम करवाया था तभी. अदरवाइज आई विल शो यू. गूगल क्लासरूम ओपन करके दिखा सकती हूँ अभी, चिंता मत कर. तुम लोग है ना अपना वो भी चेक नहीं करते हो. मैम है WBEats का. वही बोल रही हूँ मैं, तुम लोग अपना वो ध्यान से चेक भी नहीं करते हो, खाली टीचर को ही बोलते रहने का कुछ भी. आई डू एवरीथिंग इन टाइम. आई नेवर डू कि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ करने का. यस मैम. तुम लोग अपना काम ध्यान से करते ही नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें पता ही नहीं होता कि टीचर ने क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है. दिख रहा है ये गूगल क्लासरूम सबको? यस मैम. TYBA का ही है ये. देख लो यहाँ पे TYBA लिखा है, दिख रहा है? यस मैम. हेलो, यस मैम. तो दिख रहा है ये क्या है? स्कैंशन PDF. ठीक यस है, मैम. नोट्स यूनिट 4 लिखा है. ये क्या है? नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ऊपर लिख के भेजती हूँ यूनिट 3. ठीक है, पेपर 5 का है ये सब नोट्स. देन शील्ड ऑफ एक्विलिस का पोयम टेक्स्ट भी भेजा है मैंने. ये शील्ड ऑफ एक्विलिस का नोट्स है. ठीक है, फिर ये क्या है? एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंज मीटिंग. ठीक है, नोट्स ऑन स्ट्रेंज मीटिंग. फिर नोट्स ऑन WB Yeats इन मेमोरी ऑफ WB Yeats. ये WB Yeats का पोयम का PDF है. प्रगति दिखाई दिया क्या? हाँ मैम. पहले देखने का ना, फिर बोलने का. बिना देखे ही कुछ भी बोल. मैम इतना सारा नोट्स है ना कल परसों से, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इसलिए पूछा आपको. नहीं नहीं, तो कंफ्यूज हो गई तो ऐसे नहीं बोलने का ना कि मैडम आपने भेजा नहीं है. ये पूछने का ना कि मैडम भेजा है कि नहीं भेजा है ना. हाँ मैम. जो टीचर जितना करता है तुमको उतना कम लगता है ना फिर. द एंग्री यंग मैन थिएटर PDF भेजा है. ठीक है, हम्म, ये वो तो विल्फ्रेड है. ओवेंस पोएम्स का है, इनसेंसिबिलिटी और स्ट्रेंज मीटिंग का. फिर लिटरेचर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ राइटर्स पर्सनैलिटी. लिटरेचर एज इमिटेशन, लिटरेचर एंड इमेजिनेशन. ठीक है, इनसेंसिबिलिटी बाय विल्फ्रेड ओवेन, ये पोयम है. फिर क्रिटिकल टर्म्स का नोट्स एक्सरसाइज है. ये फिर बैकग्राउंड टॉपिक्स पेपर 8 का नोट्स है. लिटरेचर का फंक्शन का है.
What is literature and its function? Ambiguity, ये मैंने जो वीडियोज भेजे थे, सेमेस्टर 5 क्लास टेस्ट है, वीडियोज हैं ये। क्रिटिकल टर्म्स के नोट्स के पीडीएफ है, मिथ्स का, सिंबल का, नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर का, सब। अभी क्या बाकी रह गया है तुम्हारा? ये इनसेंसिबिलिटी का नोट्स है, ये स्ट्रेंज मीटिंग का नोट्स है विल्फ्रेड ओवेन का। ये इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स का है। फिर स्ट्रेंज मीटिंग का दूसरा भी भेजा है मैंने, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, हो गया क्लियर? यस मैम, सब हो गया, आपने हाँ। दे दिया सब कुछ। हाँ, और मैंने स्कैंशन का कभी भेजा है, 7 दिसंबर को भेजा है। यस ठीक है, मैम। फिर मैंने अभी तुम्हें 10 दिन पहले सब नोट्स दे दिए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ यू हैव टू स्टडी। और मैंने सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, बार बार तुमने जो भी कंफ्यूजन बोला है वो मैंने क्लियर किया है। Still, if you are not satisfied, then I can't do anything. Sorry. यस मैम। मैम यस, ओके। बोलो। नहीं, कुछ नहीं। कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, मेरी नहीं, क्लास में डेमोक्रेसी है, अलाउड है। आई वाज लाइक कि अब लोग कंटिन्यू करते ना स्कैंशन में, तो आप आ ही गए तो मैं बोलने का मतलब नहीं है ना इसके लिए। ओके, सो Yes, व्हाट आई वांटेड टू से कि स्कैंशन का भी मैंने आपको पूरा भेजा है, जबकि हम लोग स्टेंजा पूछने वाले नहीं है, फिर भी मैंने स्टेंजा भी भेज दिया है, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी वट एवर इज प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस टू डू दैट, though the exam pattern had changed for the time being due to COVID-19 pandemic. But I am going to teach you each and everything. Later on in future, you shouldn't say Sharmila madam hasn't taught us things what she is supposed to do. क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, पॉजिटिव तो बोलते ही नहीं है। यस मैम। कितना भी कर लो ना, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है इन जनरल, ये लाइफ का फॉर्मूला ही है। यस मैम। किसी के लिए कितना भी कर लो, पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड ना। यस मैम। तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई जस्ट कीप ऑन डूइंग माई ड्यूटी वेदर पीपल लाइक इट और डोंट लाइक इट। सो ये जो अभी हम है स्टेंजा, स्टेंजा कैसे करना है आपको, ठीक है। स्टेंजा में आपको हर लाइन में पहले स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, फुट सिलेबल मार्क करके उसको फुट डिवीजन करना है, जैसे हमने सिंगल सिंगल लाइंस में किया है। ठीक है, यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। फिर ये L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, 9, ये 9 लाइंस का स्टेंजा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉनेट। अभी किया था ना हमने, 9 लाइन स्टेंजा इज नोन एज नॉनेट। यस ठीक मैम। है, अभी आपको बेस मीटर बताना होता है, फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन बताना होता है। मॉड्यूलेशन मीन्स क्या क्या चेंज है। अभी when you do in stanza, it is not necessary that each line of that stanza has all rocky foot. ठीक है, there may be a change in the foot, so that is known as modulation. ठीक है, आया समझ आपको what is modulation? I'm sorry ma'am, can you repeat? Yeah, I am repeating only. I haven't started even. I am Okay. just telling that when you do a stanza, in each line you have to first mark stressed and unstressed syllable. Is it clear? Yes ma'am. Then you have to see what is the base meter. Base meter means which foot is used more in that particular line. Okay, and accordingly you will tell which line it is. Throughout the stanza एक मेन मीटर और मेन फुट यूज होगा पूरे स्टेंजा में। ठीक है, यस मैम। मैम मतलब जो मेजॉरिटी रहता है फुट वो वाला ना?
हाँ, वो बेस मीटर बन जाता है। बेस मीटर का मतलब है लाइन, जो पेंटामीटर है या टेट्रामीटर है, ठीक है। यस मैम। तो वो आपको डिसाइड, अभी हम कर रहे हैं, खाली मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करो, अभी मैं डिटेल करवाऊंगी, यस ठीक है। मैम। तो वो ट्रोकेइक टेट्रामीटर लाइन है, वो बेस मीटर। ज्यादातर लाइनों में कौन सा फुट है और कौन सा मीटर है, तो वो उस स्टेंजा का बेस मीटर हो जाता है। क्लियर? यस मैम। इतना समझो। फिर मॉड्यूलेशन क्या है, जैसे कोई भी लाइन हम यूज करते हैं, जैसे ये है बाय द आइलैंड इन द रिवर, इसमें ये फर्स्ट फुट जो है वो ट्रॉकी नहीं है, नहीं है ना। बाय द, यस मैम, नहीं है। थ्रू द, थ्रू द, इसमें भी ये ट्रॉकी नहीं है। तो जो ऐसे चेंज होता है ना बेस मीटर से, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन मैम, अगर वो ट्रोकाइक नहीं है तो वो पिरहिक हो जाएगा ना। हाँ, तो वो बात इसलिए नहीं। मॉड्यूलेशन में बोला है लाइन 3 में फर्स्ट फुट पिरहिक है। चेंज बताना है कि क्या चेंज है, समझी। हाँ। लाइन 4 में फर्स्ट एंड थर्ड फुट पिरहिक है। लाइन 5 में थर्ड फुट क्रेटिक है। अभी ये क्रेटिक प्रेटिक मैंने तुम्हें करवाया नहीं है, यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज, तो वो सब मत लिखना, जितना मैंने करवाया उतना ही लिखने का है तुमको, ठीक है। ओ। तो कहने का मतलब है कि एक स्टेंजा, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको सिंगल सिंगल लाइन करवाई थी, ठीक है, यस सिंगल सिंगल लाइन में, अभी देखो ये पिरहिक का एग्जाम्पल दिया था, इन ग्लोरियस ऑन द प्लेन, है ना। तो इन ग्लोरियस में ये कौन सा फुट है? आयम्बिक है ना, इन ग्लो में। यस मैम। और रियस में पिरहिक है। फिर ऑन द प्लेन में ये एनापेस्टिक है। तो इसमें कोई भी मेजर फुट नहीं है ना, तीनों अलग अलग फुट है, यस मैम। करेक्ट। तो यस। फर्स्ट फुट क्या है? आयम्बिक है, सेकंड पिरहिक है, थर्ड एनापेस्टिक है। अगर इस लाइन को देखो, एनापेस्ट फ्रॉम द शोर कम्स द नोट्स, तो इसमें फर्स्ट जो है एनापेस्ट है और सेकंड क्या है? सेकंड एनापेस्ट नहीं है। तो हाँ। ये मॉड्यूलेशन हो गया। फर्स्ट फुट एनापेस्ट है, सेकंड फुट एनापेस्ट नहीं है। अभी ये दो लाइन में अगर हम बेस मीटर देखेंगे तो एनापेस्टिक डायमीटर ही लिखेंगे ना। यस मैम, क्योंकि बट मतलब वो मिल रहा है। मॉड्यूलेशन क्या हुआ कि जो सेकंड फुट है फर्स्ट लाइन में वो एनापेस्ट नहीं है। समझ आया? मॉड्यूलेशन का मतलब चेंज बताना है आपको। इज इट क्लियर? यस मैम, मतलब जो बेसिकली। बेस मीटर है उससे जो चेंज फुट होता है वो लिखना होता है, ओके। ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है, ओके ओके कर रहे हो ना, वो मुझे समझ आ रहा है। यस मैम। बट मेरे आपको एक लाइन ली है, फर्स्ट लाइन क्या है? विलोज वाइटन एस्पन क्लियर, ठीक है। यस मैम। अभी एक लाइन को, लेट मी स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। अभी मैं कोई भी एक लाइन लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टेक टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ठीक है। अभी ये लाइन में, ठीक है, टाइगर क्या होगा? टाइगर में कितने सिलेबल हैं? 2 syllable। ठीक है, टाई एंड ग, ठीक है। विच विल बी स्ट्रेस्ड? टाई। ठीक है, गर विल बी अनस्ट्रेस्ड बिकॉज उसमें स्मॉलेस्ट साउंड आएगी, करेक्ट। गर यस का मैम। ट्रांसमिशन, टाइगर टाइगर बर्निंग, बर्न विल बी स्ट्रेस, एंडिंग विल बी अनस्ट्रेस। अभी ब्राइट में क्या है? ब्राइट इज सिंगल सिलेबल, सॉरी, ठीक है। यस मैम। सो ब्राइट विल बी स्ट्रेस्ड, ठीक है। अभी आप इसका फुट डिवीजन करोगे तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी ये Yes. लाइन कौन सी हुई? This would be. ये ट्रोकेइक फुट है, ये ट्रोकेई, ट्रोकेइक हाँ। फुट है, ये ट्रोकेइक फुट है, बट यहाँ पर आपका हाफ ही है ना, हाँ मैम, मतलब अलग हो ये गया। कोई हाँ. फुट नहीं है, ठीक Yes. है, स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो एक्चुअली अगर ये देखा जाए, सपोज ये लाइन करेंगे हम, तो ये कितना हो गया, 1 मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, थर्ड फुट सॉरी। तो ये ट्राईमीटर होती है विद एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन, अगर सपोज आपकी सेकंड लाइन पोएट्री की दी रहती है, उसमें आपका एक और वर्ड आ जाता है, सपोज ब्राइटनिंग कर देते हैं इसको, ब्राइट की जगह ब्राइटनिंग कर देते हैं, सपोज ये मैं खुद कर रही हूँ, ब्राइटनिंग वर्ड है नहीं बट मैं खुद कर रही हूँ, सपोज ये ब्राइटनिंग करते हैं इसको, तो ब्राइटनिंग में कितने सिलेबल हो जाएंगे? 2। 2 होंगे। ब्राइटनिंग में 2 कैसे होंगे? 3 3 हो जाएंगे ब्राइटनिंग, ठीक है, हाँ, हो जाएंगे। ब्राइटनिंग, तो हाँ। अभी ये ट्रॉकी ट्रॉकी ट्रॉकी, ये कौन सा फुट हुआ? डेक्टिल ना, डेक्टिल, हाँ। तो ये मॉड्यूलेशन में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फुट पे मेजॉरिटी क्या है? ट्रॉकी। फर्स्ट यस, 3 फुट क्या है? ट्रॉकी। ट्रोकी। चौथा फुट ट्रॉकी नहीं है, तो ये चेंज हो गया ना, फुट Yes चेंज। मैम. तो आपको लाइन 1 में क्या लिखना पड़ेगा मॉड्यूलेशन के अंदर? लाइन 1 फुट 4 इज कौन सा है? डेक्टिल है ना ये? Yes मैम. हाँ, तो डेक्टिल। इज इट क्लियर? मॉड्यूलेशन क्या है, समझ आया? वो आपको स्टेंजा आएगा तो हर लाइन का लिखना पड़ेगा कि हर लाइन में मॉड्यूलेशन है या नहीं है। मैम. Yes. मैम. हाँ हाँ बोलो। ऐसा आंसर ऐसा होगा ना, लाइन 1 फुट 4 इज इन मॉड्यूलेशन, ऐसा. नहीं रे, सॉरी तो सॉरी. ये आप. मॉड्यूलेशन मैंने अभी बताया ना, मॉड्यूलेशन इकट्ठे लिखना पड़ता है। पहले हाँ. बेस मीटर लिखोगे आप स्टेंजा में, Yes. पहले आप बेस मीटर लिखोगे स्टेंजा का, फिर मॉड्यूलेशन लिखोगे। ये 2m मत काउंट करो, ये 2 मार्क्स है, मार्क्स का डिवीजन बताया है, ओके मैम. ठीक है, ये 2m मत काउंट कर। L3 लाइन 3 फर्स्ट फुट इज पिरहिक। अगर आप ऊपर जाते हो, इफ आई स्क्रॉल इट, फर्स्ट लाइन में सब ट्रोकेई की है, चारों फुट, विलोज, वाइटन, एस्पन, क्वेवर, ठीक है। सेकेंड लाइन में लिटिल, ब्रिजिड, डस्क एंड शिवर, इसमें भी चारों ट्रोकेइक फुट है। तो फिफ्थ लाइन, थर्ड लाइन है जो थ्रू द वेव दैट रन्स फॉरएवर, इसमें जो फर्स्ट फुट है वो पिरहिक है, इसलिए वो मॉड्यूलेशन के अंडर लिखा है। आया समझ? यस मैम, समझा. तो अभी लाइन 3 में, फिर लाइन 4 में भी बाय द, ये पिरहिक है, फिर इन द, ये पिरहिक है। तो लाइन 4 में हमने 2 मॉड्यूलेशन लिखा है, फर्स्ट फुट एंड थर्ड फुट इज पिरहिक। आया समझ यस मैम. सबको? यस मैम। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस तो मैम. आपको पूरे स्टेंजा में क्या क्या चेंज है ट्रोकेइक से, है वो आपको पूरे स्टेंजा का लिखना पड़ता है, विच इज नोन एज मॉड्यूलेशन, ठीक है। देन है मेट्रिकल पेक्युलैरिटी। मेट्रिकल पेक्युलैरिटी में आपको बताना है रन ऑन लाइन, एंड स्टॉप लाइन एंड सेजुरा। नाउ रन ऑन लाइंस कौन सी होती है? जिस लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं हो लाइन के एंड में, दैट इज नोन एज रन ऑन लाइन। तो इस स्टेंजा में सेकेंड लाइन जो है, फर्स्ट लाइन क्या है? एंड स्टॉप लाइन, क्योंकि इसमें पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, करेक्ट, यस मैम. रिवर के बाद। सेकेंड लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो सेकेंड लाइन क्या है? रन ऑन लाइन। फिर थर्ड लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन थर्ड लाइन एट द एंड, so it is run on line. Fourth line is also run on line because there is no punctuation mark at the end of the line. Fifth line has punctuation mark, full stop, so it is end stop line. So that is known under metrical peculiarities. So line 2, 3, 4 are run on lines. Line 1, 5, 6, 7, 8, 9 are end stop lines. Run on line is also known as enjambment, but this is difficult word, so I haven't told you. Okay,
Run on line means which line doesn't have any punctuation mark at the end. At the end बोल रही हूँ मैं, not in the middle. हाँ, ध्यान रखो. Is it clear? So what is caesura? Caesura is when in the middle of the line there is any punctuation mark like comma, semicolon or colon, then we have to pause. Okay, that is known as caesura. ठीक है? Is it clear? What is caesura? When Sed- in between the line there is any punctuation mark, comma, semicolon or colon, then we have to stop and that is known as caesura. अभी caesura को कैसे मार्क करते हैं? When we mark caesura we use double lines. ठीक है? फुट मार्क करने के लिए हम लोग स्ट्रेस, फुट डिवीजन करने के लिए हम लोग सिंगल लाइन यूज करते हैं, स्लैश. ठीक है? yes ma'am. बट सेजुरा को मार्क करने के लिए हम लोग डबल लाइन यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Yes तो दैट इज नोन एज सेजुरा. देखो यहाँ पे ये डबल लाइन यूज की है क्योंकि वो टाइप किया है ना. टाइप करने में हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है. बट आप कैसे सेजुरा कैसे मार्क होता है? आई टेल यू. आई हैव डन विद यू. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है. सो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? वी प्रोनाउंस इट टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. तो टाइगर टाइगर के बाद भी हम लोग स्टॉप करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना. तो यहाँ पर सेजुरा कैसे मार्क करेंगे हम? like two lines. हाँ, तो Wait. ऐसे 2 लाइंस यूज करेंगे फुट डिवीजन के बाद. ठीक है? इज इट क्लियर? यस मतलब मैम. मैम जो स्लैश है उसके राइट साइड में डाल देंगे ना स्ट्रेट लाइंस. हाँ, 2 लाइंस डालेंगे, डबल लाइंस. ठीक है? Okay. मैम ब्रेक that मिलेगा is- थोड़ी देर? हाँ, ब्रेक क्या बोल रही है? मैम, ब्रेक मिलेगा? अरे क्या? अभी break. क्या डेट? नथिंग. समझी नहीं मैं क्या बोल रही है प्रगति. मैम यू कंटिन्यू. मैम कंटिन्यू कंटिन्यू. डेट क्या बोल रही है? मैम कुछ नहीं. तो सेजुरा को मार्क करने के लिए हम लोग 2 लाइंस यूज करते हैं ऐसे. ठीक है? इज इट मैम क्लियर? यस मैम. मैम हम लोग को तो सीधा लाइंस बनानी है ना कि थोड़ी स्लांटिंग बनानी है सेजुरा के लिए? हाँ, सीधा भी बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैम Okay. ये सेजुरा आया किधर से? अभी ये नया है क्या? मैं आपको पूरा स्टेंशन समझा रही हूँ कि स्टेंजा में कैसे करना होता है. ओके ओके. ठीक है? तो सेजुरा मार्क कैसे करते हैं समझ आया? अभी उस देर इज वीक सेजुरा और स्ट्रॉन्ग सेजुरा. व्हेन यू पॉज फॉर अ longer time it becomes strong caesura. When you pause for a smaller time period then it is weak caesura. मैम ये रिपीट करो, मैं लिख लेती हूँ. Strong caesura means when you pause for a longer time. Weak caesura means when you pause for a shorter time. ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेजुरा फॉर लॉन्गर टाइम, शॉर्ट सेजुरा फॉर Weak caesura for shorter time. वीक. ओके. Is it clear? इतना समझ आया? बाकी कल करेंगे. ठीक है? Yes. Should I end the meeting now? मैम किसी को होस्ट बना दो. हाँ, वो एंड तो, कर दोगे हम लोग भी एंड हो जाते फिर. अरे मैं ऐसा कभी नहीं किया है अभी तक, आज तक. नहीं Yes. नहीं मैम, उस दिन हो गया था, एंड हो गई थी पूरे, हम लोग भी एंड हो गए थे. कभी किया? नहीं उस दिन आपको नहीं पता, वो अपने आप हो गया था मुझे लगता है. आपने भी नहीं किया होगा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा. I assign the person and I ask the person, should I assign हाँ you? हाँ मुझे पता है मैम. कितना फिर? दिन हो गया? 4-5 महीने तो हो गए. फिर I am leaving the meeting now. ठीक है? हाँ मैम.